Objects at higher wavelength emits higher amount of electromagnetic radiation. Objects with lower temperature reach their maximum emissive intensity at shorter wavelength. For this we have to tell which is incorrect. So both of the statements are incorrect. Next, given below are two statements, one labeled as A and another R. A. In general, a rise in temperature of water adversely affect the aquatic life. सही है ये बात तो. Second, a rapid increase in temperature cause increasing density of stenothermic aquatic species. ये अपना है गलत. सो आंसर हो जाएगा थर्ड. A true, R false. Next, sun synchronous orbit which takes dash the earth is rotating a bit further, resulting in the fact that the satellite is watching different sections of earth in narrow band. तो कितने मिनट लेती है वो? 90 minutes. Answer is 1. Next, a wind rose is a geographic tool uses a polar coordinate system in a three-dimensional coordinate system in which each point on a plane is determined by a distance from reference point and an angle from reference direction. ये अपना गलत हो गया. इसमें अपन को करेक्ट बताना है. Second, the diagram normally comprises radiating spokes which represent wind direction in terms of cardinal wind direction and the intermediate direction. ये हो गया अपना सही. Third, wind rose is a spreadsheet used by meteorologists to a given sectional view of how wind speed and direction are typically distributed at a particular location. ये हो गया गलत. तो आंसर हो गया अपना only 2, D option. Next, consider the following statement related to sustainability. Sustainable development is the practice of developing land and construction projects in a manner that reduces their impact on environment by allowing them to create energy efficient models of self-sufficiency. इसके अंदर हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. तो फर्स्ट करेक्ट है अपनी सेल्फ सफिशिएंट या एनर्जी सफिशिएंट बिल्डिंग्स या कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाना है हमें. Second, natural resources must use in a way that do not create ecological debts by over-exploiting the carrying and productive capacity of earth. ये भी अपना सही है. Third है, a minimum necessary condition for sustainability is the maintenance of the total natural capital stock at or above the current level. ये भी अपना सही है. So तीनों स्टेटमेंट अपनी सही है. आंसर क्या हो गया? D. Next, which of the following statement are incorrect for geostationary orbit? ध्यान रखना है कि इसमें इनकरेक्ट पूछा है. Satellite at a very low altitude of approx 3600 किलोमीटर. ये अपना रॉन्ग है. सो एक ऑप्शन तो हो गया अपना सी. सो डी एलिमिनेट हो जाएगा. सेकंड, एट दिस एल्टीट्यूड a satellite needs exactly days or weeks later to orbit around the Earth, the same time the Earth takes to perform a complete rotation around its axis. ये भी अपना गलत है. सो बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा. अब थर्ड देखते हैं. ड्यू टू देयर हाई एल्टीट्यूड some geostationary weather satellites can monitor weather and cloud patterns covering an entire hemisphere of Earth. ये अपना सही है. तो थर्ड इसमें है तो ये अपना रिजेक्ट हो जाएगा. आंसर बचेगा अपने पास सी. सो ऑप्शन थर्ड इज आवर आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ईस्टर्न हिमालयन रीजन? करेक्ट बताना है. एरिया कवर्ड जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा रीजन. ये गलत हो गया अपना क्योंकि इसके अंदर हिल्स ऑफ उत्तराखंड भी आएंगी.
नेक्स्ट, एवरेज रेनफॉल है अपनी 200 से 400 सेंटीमीटर, ये अपना है करेक्ट। सो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा। अब फर्स्ट अपना रॉन्ग है तो जिसमें 1 आ रहा है वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। सो आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, ये हमने पहले भी कर लिया है, एक बार फिर कर लेते हैं। ग्राउंड बोर्न रिमोट सेंसिंग में हम ड्रोन यूज़ करते हैं। एयरबोर्न में एरोप्लेन मीडियम एल्टीट्यूड। स्पेस बोर्न में पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। सो आंसर विल बी डी, बी सी ए। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है अपनी, इसमें करेक्ट बताना है, ये अपन को ध्यान रखना है। फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस define an agroclimatic zone on a land unit representing accurately or precisely in terms of major climate growing period in which is climatically suitable for certain range of crops and cultivators। ये अपना सही है। Second, the Planning Commission of India has divided the India into 5 broad climatic zones in the basis of physiography, soil, geological information, climate, cropping pattern, development of irrigation and mineral resources for extensive agricultural planning and developing future strategies। ये भी सही है। सो आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर इन्वायरमेंटल एथिक इज और आर करेक्ट। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट, an important aspect of environmental awareness and environmental ethic is conservation, which can be defined as the act of preserving and protecting what already exists in the environment। ये अपना सही है स्टेटमेंट। सेकंड, environmental ethic is a branch of applied philosophy that studies the conceptual foundations of environmental values as well as more concrete issues surrounding social attitudes, actions and policies to protect and sustain biodiversity and ecological system। ये भी अपना ठीक है। थर्ड, conservation ethics also revolve around making human communities and ecosystem better, protecting important resources for present and future। ये भी अपना ठीक है। Fourth, environmental ethics builds on scientific understanding by bringing human values, moral principle, improved decision making into conservation with science। ये भी सही है। सो अपना आंसर हो गया डी, all of the above। Next, which among the following statement is or are incorrect about passive remote sensing। Incorrect पूछा है। First, hyperspatial imaging system acquires image in over 100 continuous spatial bands। This is correct। Second, multispatial imagery generally refers to 100 to 1000 bands with each band acquiring using a radiometer। ये अपना गलत है। Incorrect पूछा है, आंसर will be B। Next, consider the following statement regarding passive remote sensing। इसमें हमें क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। अब देखो, सभी ऑप्शंस में 1 है तो 1 तो अपनी करेक्ट होगी। अब सेकंड और थर्ड में होगा, या तो सेकंड होगी या थर्ड होगी या दोनों होंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है, इमेजेस प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपरस्पेशियल सेंसर्स कंटेन मच मोर डाटा देन इमेजेस फ्रॉम मल्टीस्पेशियल सेंसर्स एंड हैव अ ग्रेटर पोटेंशियल टू डिटेक्ट डिफरेंसेस अमॉन्ग लैंड एंड वाटर फीचर्स। ये अपनी करेक्ट है। सो फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। थर्ड, पैसिव रिमोट सेंसिंग कैन बी डिवाइडेड इवन फर्दर इनटू मल्टीस्पेशियल एंड हाइपरस्पेशियल। ये अपनी इनकरेक्ट है। तो आंसर हो गया बी, फर्स्ट एंड सेकंड।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग इन रिमोट सेंसिंग। ध्यान रखना है कि इसमें सीक्वेंस पूछी है हमसे। सो पहला आएगा अपना एनर्जी सोर्स, दिस इज फर्स्ट, सो स्टार्टिंग में हो गया 2। अब पहले चेक करेंगे, स्टार्टिंग में 2 एक में है तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। मोस्टली क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे जिससे अपना टाइम सेव होगा और क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। GIS technologies are integrated database which have all the information like population characteristics, economic development opportunities and vegetation types, maps. करेक्ट है, सो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। सेकंड, GIS allows to link the database maps and create dynamic displays, ये भी सही है, तो ये भी करेक्ट एलिमिनेट हो गया। आंसर विल बी neither one nor two. Next question, remote sensor generally collect the data by detecting the energy that is reflected back from earth. ये अपना सही है, बात तो सही बोल रहे हैं। रिमोट सेंसर जो डाटा रिफ्लेक्ट बैक होता है अर्थ से वो कलेक्ट करते हैं। रिमोट सेंसर कलेक्ट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ इमेज एंड मैनिपुलेट देम फॉर एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डाटा, ये भी सही है। दोनों ट्रू है लेकिन एक दूसरे का रीज़न नहीं है, so answer will be B. Both A and R are true, but R is not correct explanation. Next question, resolution plays a role in how data from a sensor can be used. सही बात है। Depending on the satellite's orbit and sensor design, resolution can't vary. It can vary. So answer will be C. A true, R false. Next, which among the following statement is or are correct about spatial resolution? Spatial resolution correct पूछा है, ये ध्यान रखना है। Spatial resolution refers to the size of smallest feature that can be detected by the satellite sensor or displayed in a satellite image. बिल्कुल सही बात है। हाई स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स लेस डिटेल और स्मॉलर पिक्सल साइज, ये गलत है। हाई है तो लेस नहीं, मोर डिटेल्ड होगा और ज़्यादा पिक्सल साइज होगा। आंसर विल बी ओनली 1, क्योंकि इसमें हमें करेक्ट पूछा है तो आंसर ओनली 1, अगर इनकरेक्ट पूछते तो ओनली 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्पोरल रिजोल्यूशन। टेम्पोरल रिजोल्यूशन रेफर्स टू द टाइम बिटवीन रेंजेस, इसमें भी हमसे करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट अपना करेक्ट है। इसमें ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें 1 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, टेम्पोरल रिजोल्यूशन इज द टाइम इट टेक्स फॉर अ सैटेलाइट टू कंप्लीट ए फुल ऑर्बिट। स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पे, लोअर द टेम्पोरल रिजोल्यूशन द शॉर्टर द डिस्टेंस ऑफ टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ इमेज, ये अपना गलत हो गया, सो ये रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर विल बी बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग रोस्टर मॉडल। लेट्स स्टडी। रोस्टर मॉडल is used for all types of aerial and imaginary only for passive sensors. इसके अंदर हमें करेक्ट पूछे, देखो जहाँ पे ओनली आ जाता है वो मोस्टली स्टेटमेंट्स फॉल्स होती हैं और अपनी ये स्टेटमेंट भी गलत है। सेकंड, द रोस्टर डाटा मॉडल इज कंप्राइज्ड ऑफ पिक्सल दैट आर टिपिकली स्क्वायर इन साइज। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। सो जहाँ पे 1 है वो एलिमिनेट हो गया, स्टेटमेंट 2 ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईली स्पेशल वेरिएबिलिटी इज इनएफिशिएंट, यहाँ पे नेगेटिव बात बोल रहे हैं तो मोस्टली जो जहाँ पे हमें पॉजिटिव चीज़ चाहिए वहाँ पे अगर नेगेटिव आता है तो वो स्टेटमेंट भी मोस्टली गलत है, जैसे अपनी ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो आंसर विल बी ओनली 2 ए। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है अबाउट सेंसर्स। मोस्ट एक्टिव सिस्टम्स
used by remote sensing application operate only in the visible infrared, thermal infrared, microwave portion of the electromagnetic spectrum. रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे ओनली भी आ गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, बचा अपने पास ओनली 2. आंसर विल बी बी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, the correction of ground truth data enables calibration of remote sensing data and aids in the interpretation and analysis of what is being sensed. इनकरेक्ट पूछे, ये अपना करेक्ट है, तो इनकरेक्ट जिसमें 1 है वो रिजेक्ट हो जाएगा. सो ये करेक्ट है, तो नीदर 1 नॉर 2. ग्राउंड ट्रूथ इज सिंपली ऑब्जर्व्ड और measurements made at or near the surface of earth in support of air or space-based remote sensing survey. That is true. Next question, which of the following statements for source of ground truth is or are correct? First, in situ spectral measurements, correct. B reject हो गया. Second, descriptive reports, correct. C रिजेक्ट हो गया. थर्ड, मैप्स, करेक्ट. फोर्थ, एरियल रिकॉन्साइज एंड फोटोग्राफी, करेक्ट. आंसर विल बी ए, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, सैटेलाइट एट वेरी हाई एल्टीट्यूड विच व्यू द सेम पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस एट ऑल टाइम्स हैव सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. ध्यान रखना है कि इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो फर्स्ट अपना इनकरेक्ट है. आंसर ये रिजेक्ट हो गया, थर्ड एंड फोर्थ. अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं. ड्यू टू देयर हाई एल्टीट्यूड सम जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट्स कैन मॉनिटर वेदर एंड क्लाउड पैटर्न्स कवरिंग एन एंटायर हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ. ये अपना करेक्ट है, सो आंसर विल बी 1 ओनली. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following statements for inversion is or are correct? Inversion is the normal change of an atmospheric property with height. ये अपना गलत है. इसमें करेक्ट पूछा है, फर्स्ट अपना गलत तो हो गया, सो जहाँ पे 1 है वो रिजेक्ट हो जाएगा. 1 ए रिजेक्ट, बी रिजेक्ट, डी रिजेक्ट. आंसर विल बी सी. 2, 3 and 4. Next we have, which among the following statement is or are incorrect about oceanic zones? Oceanic zone extend from the edge of continental shelf over the continental slope to the ocean floor and beyond. ये correct है अपना. Vertical zones are used in open ocean based on the amount of sunlight that reaches the area and the pressure exerted on the animal living there. ये भी अपना सही है. So incorrect पूछे हैं, कोई भी नहीं है, neither 1 nor 2. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्टिक जोन. इसमें भी हमें करेक्ट बताना है. फर्स्ट, इन मरीन बायोलॉजी द नॉर्टिक जोन इज ऑल्सो नोन एज द कोस्टल सी, द कोस्टल वाटर्स और लिटोरल जोन. सही है, तो अपना सब में है 1, कोई भी आंसर सही हो सकता है. सेकेंड, it extends from low tide mark outward from the seashore to where the depth of reaches 20 feet. ये अपना हो गया गलत, सो सेकंड गलत, 4 रिजेक्ट. थर्ड, दिस वाटर is lit by sunlight and relatively shallow. थर्ड अपना है सही, सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ सी लाइफ लिव्स इन नार्टिक जोन. सही है, मेजॉरिटी ऑफ लाइफ नार्टिक जोन में रहती है, लाइट वाले जोन में रहती है. नार्टिक जोन हैज़ वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर, लो प्रेशर एंड फेयरली स्टेबल टेम्परेचर. बात तो सही है, इन चीज़ों के कारण ही तो मेजॉरिटी ऑफ लाइफ सी में रहती है. तो ए एंड आर ट्रू एंड ए इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए ऑप्शन. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ओशियनिक जोन.
ध्यान रखना है कि करेक्ट बतानी है। फर्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ ओशन लाइफ एग्जिस्ट इन ecologic zone and many human activities such as boating, fishing, water sport takes place here. First correct, तो only 2 अपना रिजेक्ट हो गया, neither 1 neither 2 रिजेक्ट हो गया। The epilogenic zone commonly refers to as the sunlight zone is the top 200 meter of ocean where enough sunlight is available for plant life to grow and support large diverse population of marine life. Correct, so both 1 and 2. Next, the abyssopelagic zone contains extremely high pressure and freezing temperature. इसमें हमें करेक्ट बताना है, ये सही है। सेकेंड, द ट्रेंचेस आर फाइनल जोन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इन प्लैनेट, ये भी ठीक है। बोथ 1 and 2. Next, when the eutrophic lake continues to age and accumulate both nutrients and sediments, some characteristics reach their extreme levels. सही बात है। Second, eutrophic lakes have extensive dense weed bed, often accumulation of fumigaceous algae. ये भी सही है। बात तो दोनों सही है लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। So B option, both A and R are true, but R is not correct explanation. Which of the following statement are correct for troposphere? Troposphere के बारे में correct statements पूछ रहे हैं, देखते हैं। Earth's troposphere extends from Earth's surface to an average of 7.5 mile in height. Correct है, so अपना C option reject हो जाएगा। Next, second statement, yet this very shallow layers in tasked with holding all the air plants needs for photosynthesis, animal needs to breathe, and also contains about 99% of all water vapors and aerosols. ये भी correct है, तो अपना D भी reject हो जाएगा। Third, in troposphere temperature typically go down to higher you go, since most of heat found is generated by the transfer of heat from Earth's surface. ये भी सही है, तो अपना फर्स्ट रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर विल बी 1 2 3 4 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अप्रोक्स 7.5 to 50 माइल्स। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ऑफ अर्थ, तो ये हो गया गलत। फर्स्ट रिजेक्ट, सेकंड रिजेक्ट, fourth rejects. Answer will be second and third, C option. Next, dysphatic zone, there is light penetration but not enough for photosynthesis. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट। In this zone there is enough sunlight penetration for photosynthesis to take place. देखो दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, यहाँ पे तो नॉट इनफ बोल रहे हैं, यहाँ पे इनफ बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि नॉट इनफ होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो आवर आंसर विल बी ओनली 1, सेकंड विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्स्ट, epilogenic zone extends from shoreline to down to 200 मीटर। करेक्ट है, तो अपना थर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड, मिसो एक्सटेंड्स फ्रॉम 200 to 1000। करेक्ट है। थर्ड, बेथ 1000 से 4000। करेक्ट है, तो अपना ए ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। हाइडो 4000 to 6000, ये अपना गलत है। सो आंसर विल बी डी 1 2 and 3। ये अपना होता है 6000 एंड बियॉन्ड। 4 to 6 होता है अपना अबायस।
नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीजोस्फेयर। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है इसमें भी, तो वही एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। साउंडिंग रॉकेट्स एंड रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट कैन रीच दिस मेसोस्फेयर, करेक्ट है। लोकेटेड बिटवीन अबाउट 31 and 50 miles above अर्थ सरफेस द मेसोस्फेयर गेट्स एक्सक्लूसिवली कोल्डर विद डेप्थ, ये अपना गलत है, तो सेकंड रिजेक्ट हो गया, फोर्थ रिजेक्ट हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। द वेरी स्केयर वाटर वेपर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ मेसोस्फेयर फॉर्म निक्टिवलेंट क्लाउड्स द हाईएस्ट क्लाउड्स इन अर्थ एटमोसफेयर, ये अपना सही है। सो आंसर विल बी 1 and 3, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं। इफ़ द वाटर वेपर डस्ट एंड अदर विजिबल कंपोनेंट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द एटमोसफेयर वी वुड फाइंड दैट इट मेक अप वेरी स्टेबल वर्ल्ड वाइड अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर्स, ये भी सही है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन इंटरलिंक नहीं है। आंसर विल बी बी, बोथ हे एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Next, which among the following statement is or are incorrect about atmospheric layers? The atmosphere gradually thins with increasing altitude. It has no sharp outer boundary but simply blends with the outer space. Correct है? So A option and C option eliminate हो गए। Heat refers to the quantity of energy present in material, whereas temperature refers to the intensity of or the degree of hotness, ये भी करेक्ट है। सो आंसर विल बी नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन आवर एटमोसफेयर इज क्रूशियल टू दोज ऑफ अस हु ड्वेल ऑन अर्थ, बिल्कुल सही है। अगर ओजोन नहीं होगी तो सारी रेडिएशन आ जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। Ozone absorbs much of the low energy potential harmful UV radiation from the sun, ये अपनी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सही है लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। सो आंसर विल बी सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसमें भी हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। द एटमोसफेयर, अब देखो चारों में ए है, फर्स्ट है तो फर्स्ट अपना करेक्ट ही होगा। सेकंड, द प्रेशर विल डिक्रीज विद एल्टीट्यूड एंड इंक्रीज एट इट गेट्स क्लोजर टू द सी लेवल, करेक्ट। थर्ड, एयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन, इट चेंजेस विद एल्टीट्यूड एज वेल एज विद द राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, सही। देन ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। Next question, which among the following statement is or are incorrect about earth layer? Incorrect बतानी है। The crust is a silicate solid, the metal is viscous molten rock, the outer core is viscous liquid, the core is dense solid, correct. Seismic discontinuities are the region in the earth where seismic waves behave a lot different compared to the surrounding region due to the marked change in physical and chemical properties, correct. So incorrect पूछे कोई भी नहीं, neither 1 nor 2। ये लास्ट क्वेश्चन है। which among the following statement are correct for crust? The crust is outermost layer of earth making up to 0.5 to 1% of the volume and less than 1% of mass, सही है, तो अपना सी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड, डेंसिटी इंक्रीजेज विद डेप्थ, ठीक है। एवरेज डेंसिटी है अपनी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड सही है। थर्ड, द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय एज मच एज 8 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी किलोमीटर इन अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट, ये अपना हो गया गलत। सो ये ऑप्शन अपना रिजेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ,
The continents are composed of light silicate, silica plus aluminium, also called sil, while the oceans have the heavier silicate, silica plus magnesium, called sima. That is correct. So answer will be D, 1, 2 and 4.